नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। बिखराव और दरार की खबरें आई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने आज कहा कि कांग्रेस के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है और गठबंधन का फैसला चुनाव के बाद लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राज्य में आ रहे हैं और शिष्टाचार के नाते हमें नहीं बताया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की ओर इसे इशारा माना गया। কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রথম থেকে প্রত্যাখ্যান করেছি। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার জন্য। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলতে এই কাজল চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে নাটককে দুটো। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? हालांकि कांग्रेस को अभी उम्मीद है कि सीटों पर समझौता हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हम ममता बनर्जी से बात करेंगे और मिलकर बीजेपी को हराएंगे। No problem. Don't worry. Mamata Banerjee is the senior most leader of India Alliance Party. We are respectfully saying that if there is any concern in her mind, we will try and we will discuss and settle it. We are having a coalition of 26 parties. Here and there may be some issues. Finally, we will solve every issues. Rahul Gandhi ji also wrote a letter to Mamata ji. There may be some specific details may be missing in that letter. That I also agree. Where it is coming, when it is coming to Bengal or like this. That miscommunication may be happened from our side also. We are ready to address that things. If any concern is there in Mamataji's mind, we are ready to remove that concern also. We will go together only. Don't worry. Our Mamataji's aim, what is the aim of Mamataji? To minimize BJP seat in Bengal. What is our aim? Our aim is also to minimize BJP seat in Bengal. Therefore, finally it will come together. लेकिन समस्या सिर्फ बंगाल में ही नहीं है। पंजाब में अकेले लड़ने का आम आदमी पार्टी का भी ऐलान हुआ है। भगवंत मान मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि 13 सीटों के लिए 40 नामों पर विचार जारी है। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटें जीतेंगे और पंजाब में कांग्रेस के साथ हमारा कुछ नहीं है। और इससे चंडीगढ़ में जो मेयर चुनावों के लिए भी एक अहम संकेत माना जाए, जो 30 जनवरी को है 10 बजे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झड़प को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि इसका मकसद शांति भंग करना है और इससे पहले आज राहुल गांधी ने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था। এৰেষ্ট আমি লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত কৰিম। এতিয়া কৰিলে মানুহে আৰু পলিটিকেল এটা পলিটিচাইজ হ'ব। লোকসভা কেছটো হ'ল এতিয়া SIT ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আৰু যিবিলাক প্ৰমাণ আমাৰ সন্মুখত আছে। কালিতো গুৱাহাটীত বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'লহেঁতেন, যি ধৰণে তেওঁ বেৰিকেড ভাঙাৰ বাবে উৎসাহ যোগাইছিলে। গতিকে আমি সময়ত লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে আমি বৰ বেছি নকৰোঁ, কাৰণ অসমত আমি এনেই জিকি আছোঁ আৰু ইয়াত বৰ বেছি পলিটিকেল हुलस्थुल कोई लाभ ना, शांतिपूर्ण भावे राज्यखन থাকিলে ভাল আমার। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी मौजूद हैं। राहुल गांधी को सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा। हेमंत HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो
देश का सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर है। पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। रतनदीप चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। रतनदीप, मामला काफी अब गंभीर होता जा रहा है। जी हाँ, मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। जब से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर के थौबाल से शुरू हुई थी, वो 18 जनवरी को वो असम में घुसी और उसके बाद से ही हमने देखा है कि एक जो वॉर ऑफ वर्ड्स जिसे हम कहते हैं कि एक दूसरे को बातों में निशाना साधना, वही कर रहे हैं राहुल गांधी और हिमंत बिश्व शर्मा। और एक दूसरे के ऊपर ये जो आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा पर्सनल भी हो जा रहा है, क्योंकि एक समय हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में भी थे और राहुल गांधी तब उनके नेता थे, और इसके बाद कांग्रेस से अब जब वो निकल के आए तब से ही हमने देखा है कि राहुल गांधी के ऊपर हमेशा एक अटैक करते हैं। और इस बार राहुल गांधी ने काउंटर अटैक शुरू किया है हिमंत बिश्व शर्मा के ऊपर। और ये जो केस रजिस्टर हुई है कल गुवाहाटी सिटी पुलिस ने रजिस्टर की है, जब राहुल गांधी का जो यात्रा का काफिला नेशनल हाईवे को पकड़ के जा रहा था, तब अचानक वो जो उनको जो परमिटेड रूट दी गई थी वहां से वो टर्न करके शहर की तरफ घुसने की उन्होंने कोशिश की। उनके कांग्रेस के सपोर्टर्स ने बैरिकेड तोड़ा और इसके बाद पुलिस ने भी वहां पे लाठीचार्ज करनी पड़ी पुलिस को। और इसमें केस दर्ज किया गया है राहुल गांधी के विरुद्ध और काफी सारे कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध। और इसके बाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को भी लिखा है कि जब से यात्रा असम में घुसी है तो असम पुलिस उस यात्रा को सुरक्षित सेफ पैसेज नहीं दे पाई है। बहुत सारे पहले भी जो घटना घटी है इन सब का वो ब्यौरा देते हुए एक चिट्ठी लिखी है। तो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस यात्रा को लेके एक राजनीतिक नैरेटिव भी बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। 2024 का जो चुनाव है वहां पे उत्तर पूर्व के 25 सीट दोनों पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, और उसमें आसाम में जो 14 सीट है बहुत महत्वपूर्ण है। और आसाम एक ऐसा राज्य है जहां पे कि दो बार चुनाव हार चुकी है कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं पे कांग्रेस की भी ये कोशिश है कि ये जो यात्रा है इससे एक तैयारी की जाए जो चुनाव के लिए। और इसीलिए शायद आसाम के मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं उत्तर पूर्व में, उनके ऊपर एक सीधा डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश राहुल गांधी, एक फ्रंटल अटैक करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं और उसका एक काउंटर अटैक देने की भी कोशिश कर रहे हैं हिमंत बिश्व शर्मा। मगर इस बीच में दोनों ही नेता बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक में भी जुट गए हैं। बिल्कुल रतनदीप, ये बहुत निजी मामला होता जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार के दिग्गज समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और आज कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन है, जन्मशती है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक हमेशा बताया गया। सरकार के इस फैसले का हर ओर स्वागत हो रहा है। सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है
2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल जयपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मैक्रों की अगवानी करेंगे और इस बार 26 जनवरी कार्यक्रम के वे मुख्य अतिथि हैं। बताया गया है कि वह हवा महल जाएंगे, चाय पिएंगे और यूपीआई के जरिए पैसे का भुगतान करेंगे। बहरहाल हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह और जानकारी दे रही हैं और सुरक्षा इंतजामों के बारे में बता रही हैं। तो यहाँ पर जो बड़ी चौपड़ है, यहाँ पर जो जंतर मंतर से रास्ता आता है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर हो रहा है। सिक्योरिटी के लिहाजे से आप देख सकते हैं कि एक गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और एक ड्रेस रिहर्सल हो रहा है इस लिहाजे से कि यहाँ पर जब पीएम एक शोभा यात्रा पर निकलेंगे प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ, तो किस तरह से वो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी है यहाँ पर, सेंकथीर जी जो हैं, जो इंटेलिजेंस के हेड है राजस्थान के, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स, एसपीज, यहाँ पर एक एसपीजी के साथ जो है, और फ्रेंच डेलीगेशन भी आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। फ्रेंच डेलीगेशन जो फ्रेंच सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो भी चल के आए हैं और यहाँ पर जो एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर ड्रेस रिहर्सल आपको देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है अंतिम पड़ाव जो है जो इस यात्रा का है जयपुर में रामबाग जाएंगे, उसके पहले जो यात्रा है वो यहाँ पर रुकेगी। एक शोभा यात्रा जो है यहाँ जंतर मंतर से यहाँ पर आके और फिर यहाँ हवा महल पर रुकेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब जो ये जा रहे हैं यहाँ इस तरफ जाएगी और एक तरह से एक सिक्योरिटी, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी होगा इसमें, तो उसके जो एक तरह से इसका एक ड्रेस रिहर्सल हो रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ये जो ओपन जीप है इसमें प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं यहाँ पर इसमें से जाएंगे। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से जा रही हैं। और अब मुंबई से खबर है। मुंबई के गोरेगांव में एक इमारत में आग लग गई है। आग बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर लगी है। पता चला है कि ऊपरी मंजिल के फ्लैट में काम चल रहा था, फ्लैट खाली था, किसी के फंसे होने की खबर नहीं है और आग बुझाने का काम गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर सेना की ओर से एक कपल परेड में हिस्सा ले रहा है। मद्रास रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को लीड कर रहे हैं मेजर जेरी ब्लेज और वेटरन की झांकी पर होंगी कैप्टन सुप्रीता, जो आर्मी एयर डिफेंस से हैं। दोनों की शादी 1 साल पहले हुई है। उनसे बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर शायद ये पहली बार होगा कि एक कपल जो है परेड में हिस्सा लेगा सेना की ओर से। मैं मेजर जेरी ब्लेज हूँ और मैं मद्रास रेजिमेंट को लीड कर रहा हूँ और ये मेरे भाई। आप? मैं कैप्टन सुप्रीता हूँ, मैं आर्मी एयर डिफेंस से हूँ और मैं इस बार कर्तव्य पथ के परेड का हिस्सा ले रही हूँ। तो कैसे आप लोग का सिलेक्शन हुआ इसमें? दोनों के एक साथ हुआ कि अलग अलग हुआ? जैसे हमारा सिलेक्शन हमारे ट्रेनिंग सेंटर में होता है, तो उधर से ऑफिसर सेलेक्ट होके, जवान और सरदार साहिबान सेलेक्ट होके फिर उसके बाद हम एक टीम बन के इधर आते हैं। और आपका सिलेक्शन? जैसे मैं यहाँ पे आई परेड पे हिस्सा लेने के लिए, यहाँ पे काफ़ी सारे टैब्लोस चलते हैं, तो मैं उनमें से एक जो आर्मी वेटरन्स के पूरा लाइफ को डिपिक्ट करता है वो वाले टैब्लो में सेलेक्ट हुआ। तो कैसा लगा सुनकर कि जब दोनों आदमी एक साथ कर्तव्य पथ पे हिस्सा लेंगे? जैसे हम पहले भी इधर एनसीसी रिपब्लिक डे में हिस्सा ले चुके हैं, मैं 2014 में ले चुका था, तो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। और मैं एक सेकेंड जनरेशन ऑफिसर भी हूँ और ये हर एक ऑफिसर का
सपना होता है कि अपना रेजिमेंट को लीड करें 26 जनवरी में। तो जब आपको पता लगा कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो है कर्तव्य पथ पर हिस्सा ले रही हैं, पहले हम दोनों को काफ़ी वी फील वेरी ऑनर्ड कि हम दोनों एक ही साथ में एक ही परेड पे हिस्सा ले रहे हैं। एंड ये जो हमारी सक्सेस है ये शेयर्ड सक्सेस है कि हमारा एनसीसी डे से हमारा सपना था कि हम दोनों ऑफिसर्स बन के आएंगे और एक साथ कर्तव्य पथ पे हिस्सा लेंगे। तो आज ये सपना सच हो रहा है और ये देखकर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो इसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़बरदस्त किया होगा आप दोनों ने मिल के किया, इकट्ठे किया या अलग अलग हुआ है? नहीं, सबका अलग अलग ट्रेनिंग हुआ है। और जैसा हमारा जो ट्रेनिंग है वो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था और इनका अलग होता है। अलग हुआ। फिर भी जोश पूरा एकदम। प्रैक्टिस आप लोग कैसे करते हो? मेरा ये है टैबलो है। टैबलो, अच्छा। इतना प्रैक्टिस नहीं है, इनका है। इनका आप लोग को प्रैक्टिस को अभी जोश के साथ एकदम पूरा करना पड़ता है। हाँ, हमारा ड्रिल वगैरह जो है उसके हमारा डेली रूटीन एक सेट है कि हम मॉर्निंग वार्म अप परेड करते हैं, फिर उसके बाद ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं, फिर ऑन ग्राउंड इवनिंग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। मतलब पूरा जोश हाई एकदम। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि जोश पूरा हाई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर ये सब कुछ दिखेगा। नई दिल्ली में कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।